Hello everyone, welcome to Physica Tube. In this video, I will discuss 100 MCQs on quantum mechanics. These are the important MCQs based on the quantum mechanics of BSc level. So BSc level में जितने important quantum mechanics के questions हैं मैंने इसको वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है and I hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. और इसी के साथ I am going to provide the PDF of the MCQs also, क्योंकि मैंने जितनी प्रीवियस PDF MCQs की अपलोड करी हैं तो स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि हमें PDF प्रोवाइड करवा दो. सो नाउ ऑनवर्ड्स आई विल प्रोवाइड PDFs ऑफ द MCQs also. So this video is going to beneficial for you if you are preparing for any of these exams. चाहे आप MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मास्टर ग्रेडर लेक्चरर फिज़िक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर PhD एंट्रेंस और नेट गेट किसी भी फिजिक्स के एंट्रेंस के एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट. So answer is option A, cesium, because cesium is alkali metal and ionization enthalpies of alkali metals as well as work function of alkali metals is very low. Means cesium can show photoelectric effect even with the visible light. Next question, which of the following show photoelectric effect with ultraviolet light. So here this sodium and potassium, these are the alkali metals and zinc is the transition metal. Alkali metals can show photoelectric effect with visible light also, and ultraviolet light is having frequency of photon more than visible light. So it means with ultraviolet light all the three metals can show photoelectric effect. So answer is option D. Next, photoelectric effect is observed if the frequency of incident light is. So if the frequency of incident light, so we know the formula H nu, frequency or energy of incident light is equal to H nu naught, which is work function of the metal, plus the kinetic energy of the electron. So here if we take nu is equal to nu naught, means frequency is equal to threshold frequency. In that case we will get kinetic energy of the electrons is 0. So if the electrons are having kinetic energy 0, so they are not reaching at the anode, it means कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा. सो इन ऑर्डर टू गेट द ऑब्जर्वेबल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट. सो अगर ये न्यू नॉट से फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, सो इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट विद किनेटिक एनर्जी एंड दे विल रीच द नोड एंड वी विल गेट द करंट. सो इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज. So wavelength of incident light should be below the threshold wavelength because frequency and wavelength are inversely proportional. So in the previous question we have said that the frequency of the incident light should be greater than the threshold frequency for the observation of photoelectric effect. It means wavelength should be below the threshold wavelength. Next is if frequency of incident light is more than threshold frequency, then photoelectric current is. So we know दैट न्यू इज़ ग्रेटर दैन न्यू नॉट. सो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बताना है कि इंटेंसिटी के साथ कैसे वेरी करेगा. सो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का मीनिंग है कि जो फोटोन्स हैं वो ज़्यादा होंगे अगर ज़्यादा इंटेंसिटी होगी. सो यहाँ पे क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है फोटोन्स की, मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोड्यूस हो ही रहे हैं. सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे जितने नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा हो जाएंगे. तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर being produced is directly proportional to number of photons. Number of photons means intensity. So it means कि अगर intensity ज़्यादा है तो उस केस में क्या हो रहा है, फोटो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे. सो इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट देन दिस ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन. सो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स. अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी और नन ऑफ दीज. सो वी नो द फॉर्मूला एच न्यू, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लस द किनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज़ हाफ mv². सो हमें यहाँ पे वेलोसिटी की बात करनी है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ये वेलोसिटी है ये कब ज़्यादा होगी,
क्योंकि दिस इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विच इज़ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मेटल। सो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन्स, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल एट अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी increase with increase in intensity of light, decrease with increase in intensity of light, or does not depend on intensity of light. So first of all, what is stopping potential? We know that when light falls on this plate, this is photosensitive plate, electrons are emitted and electrons when they reach at this plate, ठीक है, जो एनोड यहाँ पे होगा जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, उस प्लेट पे रीच करेंगे, देन वी विल गेट करंट इन द सर्किट। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में क्या करना है, वी विल अप्लाई द अपोजिट पोटेंशियल ऑन दिस प्लेट, मींस वी विल अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल ऑन दिस प्लेट, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ तक रीच ना करें। मींस हमें उतना पोटेंशियल अप्लाई करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी किनेटिक एनर्जी के इक्वल ही हमें यहाँ पे एनर्जी लगानी है। सो इट मीन्स कि जो ये हमारा फॉर्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी है दिस शुड बी इक्वल टू EV नॉट। दिस इज द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे मूव थ्रू द पोटेंशियल V नॉट। यहाँ पे V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। सो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उस केस में फोटो करंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेनी है और ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी भी वेरी नहीं करेगी फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा। मींस इंटेंसिटी का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। सो इसका आंसर आएगा डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो फिक्स्ड है, मींस फिक्स्ड नंबर ऑफ फोटोन्स एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा। अब यहाँ पे देखो, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, मींस अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये तो कांस्टेंट है, तो किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और अगर किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उनको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा। इट मीन्स कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। सो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो रेट है उसका वेरिएशन बताना है विद द टेम्परेचर। सो वी नो कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted only when the photons have sufficient energy or sufficient frequency, means जो फोटोन की फ्रिक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। एंड टेम्परेचर का इस केस में कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। जो मर्जी टेम्परेचर हो, अगर फोटोन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है सो श्योरली देयर विल बी इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ मोमेंटम p from the relativistic energy momentum relation we know that E square is equal to P square C square plus M square C power 4, and we know that rest mass of photon is 0. So this term is 0. It means energy of the photon is equal to Pc. So answer is option A. Next is the momentum of photon of energy E. So अगर फोटोन का मोमेंटम निकालना है, एनर्जी गिवन है E, सो फोटोन का मोमेंटम P इज इक्वल टू E बाई C आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, हमें पता है कि फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। अब 0 कैसे आएगा हम वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। m इज इक्वल टू, हमें पता है जो मूविंग पार्टिकल है, इफ m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द मूविंग पार्टिकल देन m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस v स्क्वेयर c स्क्वेयर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारा रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो फोटोन है उसकी वेलोसिटी v जो है दैट इज इक्वल टू c, सो m नॉट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू c सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये वाली जो टर्म है 0 बन जाएगी। इट मीन्स m नॉट विच इज़ द रेस्ट मास, मीन्स मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट रेस्ट, तो ये क्या बन जाएगा 0। फोटोन डज नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। वर्क फंक्शन में पता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल। सो वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, बिकॉज वी नो कि जो अल्कली मेटल्स हैं वहाँ पे उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल स्मॉल है, सो उनका जो
वर्क फंक्शन होता है सोडियम सीजियम मेटल्स का वो कम होता है। ऐसे ही अगर हम ट्रांजिशंस मेटल की बात करें जैसे जिंक है तो उनका वर्क फंक्शन ज़्यादा हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वर्क फंक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अगला है क्वेश्चन, व्हेन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट on the metallic surface is equal to work function of the surface then the velocity of photoelectron। so यहाँ पे हमें क्या है, जो एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की है एच न्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आपकी एनर्जी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। अगर वर्क फंक्शन को हम डब्ल्यू नॉट बोलें, सो दिस इज डब्ल्यू नॉट, दिस इज ऑल्सो W naught. When both are equal, we get the kinetic energy or the velocity of the photoelectron 0. So इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन B. Next is which of the following electromagnetic radiations can cause emission of electrons from zinc surface। हमने अभी बात करी है कि जो zinc है that is a transition metal, so more energy is required to remove electron from the zinc surface। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं येलो एंड रेड लाइट विजिबल लाइट हैं, ठीक है, इनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है और इंफ्रारेड की फ्रिक्वेंसी इन दोनों से कम होती है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रा देखेंगे तो विजिबल लाइट यहाँ पे फॉल करेगा, इंफ्रारेड यहाँ पे फॉल करेगा, दिस इज द अल्ट्रावायलेट। सो एज वी गो टू दिस साइड फ्रिक्वेंसी और एनर्जी ऑफ द फोटोन इंक्रीजेस। तो अल्ट्रावायलेट के फोटोन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए जिंक जो है उसकी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए कौन सी रेज रिक्वायर्ड है, अल्ट्रावायलेट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमने ऑलरेडी ड्रॉ करा है कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। तो कंडीशन क्या है कि जो फोटोन्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हो, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स द ग्राफ इज़ अ straight line। next question, graph between stopping potential and frequency of incident light। so इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा that is a straight line। the reason is कि according to this formula this is constant for a particular metal। so अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स उनकी किनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। अगर ये इंक्रीज कर गई तो वी हैव टू अप्लाई मोर स्टॉपिंग पोटेंशियल इन ऑर्डर टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उस पर रीच ना कर पाएँ। सो इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली अगर दोनों का रिलेशन देखें कि अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये भी ज़्यादा होगा। सो दोनों का जो ग्राफ है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स विद। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स विद बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ओनली बिकॉज फोटोन्स व्हेन दे स्ट्राइक विद बाउंड इलेक्ट्रॉन्स they can give their whole energy to the bound electrons and cause the emission of photoelectrons। but if the electrons are free then the photons, incoming photons, they are not able to give their whole energy to the free electrons। like in Compton scattering, the electrons are free, then simply the photon can scatter from the electron, cannot release the electron। so इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। In Compton effect, the collision between the photon of incident radiation and the electron of scatterer is। तो Compton scattering में जो collision होता है फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का that is elastic collision। ठीक है, means momentum and energy remains conserved in the collision। next is the Compton shift lambda dash minus lambda depends on। so हमें पता है कि जो lambda dash minus lambda है that is equal to where phi is the angle of scattering। सो ये जो शिफ्ट है इट मीन्स ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एच कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, एम नॉट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ एंगल चेंज होगा। ठीक है, सो इसलिए ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज कॉम्पटन वेवलेंथ इज गिवन बाय। कॉम्पटन वेवलेंथ क्या होती है, जो कॉम्पटन शिफ्ट है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस फाई। और हमें पता है कि अगर फाई 90 डिग्री हो जाए देन दिस टर्म कॉस फाई becomes 0। it means कि जो lambda dash minus lambda है then it is called Compton shift that is denoted by lambda c which is equal to h upon m naught c। so इसलिए Compton shift का जो formula आएगा that is option A। next question is the Compton effect occurs with। so the answer is only with free electron। the reason is if we consider the bound electron, the reason is this is the Compton shift and it depends upon the mass of the electron, this is inversely proportional to mass of
free electron. But if the electron is tightly bound to the nucleus, in that case the photon will transfer its momentum and energy to the whole atom, because electron is bound to the nucleus of the atom. So that is why then we have to replace this mass with capital M, which is the mass of the atom. Now mass of the atom is definitely very large as compared to mass of electron, so that is why this shift lambda dash minus lambda will be very small in that case. So that is why Compton effect occurs with free electrons only. Next, de Broglie wavelength of a particle is, so de Broglie wavelength is given by lambda is equal to h upon p. This is the wavelength of the wave which is associated with the particle, and p is equal to mv. So wavelength is inversely proportional to the mass of the particle. Answer is B. Next is the wavelength associated with a moving electron in a potential difference of V volts as. So here the electron we are considering, we have to find its wavelength when it is moving in a potential difference of V volts. So when the electron moves through a potential difference of V, it gains an energy equal to EV. So its kinetic energy becomes equal to EV, where V is the potential. So from here we will find value of mv, multiply m on both sides, and then we will get value of mv is equal to, this v is velocity and this v is potential. So in the de Broglie wavelength formula, lambda is equal to h upon p or h upon mv. So we can substitute value of mv, which is root 2 me v. This v is potential. So here we can see that lambda is inversely proportional to square root of v. So this is the answer. Next, the de Broglie wavelength associated with particle at rest. So if the particle is at rest, velocity is equal to 0. So it means de Broglie wavelength is, so it means if v is 0, de Broglie wavelength is infinity. Option B. Next is de Broglie wavelength associated with particle at absolute temperature T. So this is the de Broglie wavelength. We know that energy of the particle moving at velocity v is half mv square. Also from the kinetic theory of gases, the average energy of the material particle at temperature T is 3/2 kT. So when we equate both the equations, we will get value of mv, multiply m on both sides, and then we get mv is equal to root 3 kmt. And now substitute this value of mv in this equation, we will get lambda equal to h upon root 3 mkt. So lambda is inversely proportional to square root of temperature. So answer is option C. Next, the velocity of wave associated with photon is, that is equal to the velocity of light, because velocity of photon is equal to velocity of light. Next is the particle nature of electromagnetic radiation is established by the phenomenon known as. So out of the given options, diffraction and interference confirms about the wave nature of light, क्योंकि दोनों पैटर्न्स में जो मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्टेन होते हैं, that tells us about the wave nature of the electromagnetic radiation means light. ठीक है, इस केस में हम लाइट की जो नेचर है चेक करते हैं कि वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है. तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस क्या बताते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट इज हैविंग वेव नेचर. सो कॉम्पटन इफेक्ट जो है दैट टेल्स अस अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यहाँ पे अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी ऑप्शन आ जाता तो वो हमारा आंसर सही होना था, बट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कॉम्पटन इफेक्ट इज डिफरेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज़ रेलेवेंस इन macroscopic word, only in microscopic word, or in both. So according to the uncertainty principle, the uncertainty in position and uncertainty in momentum, so their product is greater than equal to h upon 2 pi, where h is Planck's constant and value of h is very small, which is equal to, so since this product is very small and it is not relevant for the macroscopic world. So answer is option B. Next question, the maximum kinetic energy of emitted electrons when no potential is applied between the plates and stopping potential is 3 volt. So we know that maximum kinetic energy half mv square is equal to EV naught, where V naught is the stopping potential. So stopping potential is
3 वोल्ट गिवन, सो किनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू ई इज़ 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम इंटू वी नॉट इज 3 वोल्ट. So when electrons are stopped by applying a potential equal to 3 volt, the electron energy is equal to maximum kinetic energy. So अगर इसको सॉल्व करेंगे we will get the answer 4.8 10 raised to power -19 coulomb volt. Coulomb volt is joule. Right answer. Next is the probability of finding the particle at a given point in the space at a given time is, so probability at a given point in space, let us say the point is r and at time t, and in the volume element let us say d tau is a small volume element, then probability is given by psi mod square d tau, so it is proportional to psi mod square. So answer is option B. Next is which of the following wave function represents the free particle moving along x-axis. So particle which is moving along x-axis, it is represented by a plane wave equation, or this is e power iota kx minus omega t. ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. अब ये कैसे बनेगा आंसर, लेट अस अंडरस्टैंड. सो वी आर गिवन के जो पार्टिकल है फ्री पार्टिकल है, सो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर अ फ्री पार्टिकल, एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे. E का जो ऑपरेटर फॉर्म है आइटा एच कट करली साइड करली टी, इसकी वैल्यू आ गई. P का वैल्यू है माइनस आइटा एच कट डेल, सो ये आ गया माइनस एच कट स्क्वेयर डेल स्क्वेयर साई ओवर 2m. सो दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द पार्टिकल विच इज मूविंग फ्रीली अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. और जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंसिडर करेंगे डेल स्क्वेयर का वैल्यू कौन सा आ जाएगा, करली स्क्वेयर ओवर करली एक्स स्क्वेयर. ठीक है, ये टर्म आ जाएगी इसमें से. सो हमारी जो श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई फ्रीली मूविंग पार्टिकल के लिए, ई साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m करली स्क्वेयर साई ओवर करली एक्स स्क्वेयर. इक्वेशन 1. ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हमें निकालना है. वी कंसिडर दिस सोल्यूशन फॉर इक्वेशन 1. अब हमें क्या करना है, इस साई को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है इन इक्वेशन 1. देन ई साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m करली स्क्वेयर साई ओवर करली एक्स स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर. अगर इसका हम 2 बार डेरिवेटिव लेंगे तो ए स्क्वेयर आ जाएगा इंटू साई. यहाँ से हमारे पास ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई -2me ओवर एच कट स्क्वेयर, एंड देन स्क्वेयर रूट लेके माइनस का आ गया आइटा स्क्वेयर रूट, और यहाँ से आप देख सकते हो कि √2me की वैल्यू p आ जाएगी. सो a की वैल्यू आ गई आइटा p ओवर एच कट. सो नाउ कंसिडरिंग द पार्टिकल नेचर फ्रॉम द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, p इज एच कट ओवर लैम्डा, एंड जो डिनोमिनेटर में एच कट है दिस इज h/2π. h कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ गई i 2π ओवर लैम्डा. 2π ओवर लैम्डा इज वेव नंबर विच इज़ k. सो a का वैल्यू आ गया आइटा k. अब दूसरी वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू कैसे आएगी, तो इसी वेव फंक्शन को साई को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, आइटा एच कट करली साई ओवर करली टी आ जाएगा आइटा एच कट b, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m इंटू दिस इज ए स्क्वेयर. ठीक है, अब ये जो टर्म है माइनस एच कट स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओवर 2m, यहाँ से अगर आप देखोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ई, तो एक माइनस यहाँ पे है प्लस ई हो गया, और यहाँ से b का वैल्यू आ गया e ओवर आइटा एच कट. और अगर हम पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपके पास e की वैल्यू जो आ जाएगी एच कट ओमेगा आ जाएगी, बिकॉज जो फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू होती है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2π करेंगे तो एच कट ओमेगा हो गया. यहाँ से b का वैल्यू आ गया ओमेगा ओवर आइटा, आइटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करके b की वैल्यू हो गई माइनस आइटा ओमेगा. सो इट मीन्स जो हमारा वेव फंक्शन बनेगा दैट इज ए ई पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी. दिस इज द वेव फंक्शन फॉर द प्लेन वेव. ठीक है, तो ये प्लेन वेव सोल्यूशन आ जाएगा for the particle moving freely along x-axis. Next is which of the following represents normalization condition. So for normalization condition, the probability of a particle, if wave function of particle is psi, then probability of particle in finding some region of space or some volume element d tau is psi star psi. So probability from x equal to minus infinity to plus infinity, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1.
सो इसलिए जो इंटीग्रेशन है प्रोबेबिलिटी का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो कई बार वेव फंक्शन गिवन होता है जिसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगा होता है, उसकी पहले हम वैल्यू निकालते हैं यूजिंग दिस कंडीशन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पेस। सो इन स्पेस लेट अस कंसिडर वॉल्यूम एलिमेंट dx dy dz, दिस इज द वॉल्यूम विच इज इक्वल टू डी टाउ। सो अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पार्टिकल की इन फाइंडिंग दिस वॉल्यूम एलिमेंट, then probability PRT in the volume element d tau, this is equal to. Next question, which of the following represents probability of finding the particle in space. So in space let us consider volume element dx dy dz, this is the volume which is equal to d tau. So अगर probability find करनी है particle की in finding this volume element, then probability PRT in the volume element d tau, this is equal to psi star psi into d tau. So इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ स्टेट इज ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है दैट इज ऑलवेज रियल, बिकॉज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज साई स्टार साई और साई मॉड स्क्वायर, एंड साई मॉड स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज रियल। सो अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाए तो उस केस में वैल्यू है साई मॉड स्क्वायर। अगर प्रोबेबिलिटी आ जाए इन फाइंडिंग सम पर्टिकुलर स्पेस, देन p इंटू डी टाउ करते हैं हम, विच इज़ इक्वल टू दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड दिस साई मॉड स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट इज टू वेव फंक्शंस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ। सो वेव फंक्शंस जो हैं ऑर्थोगोनल कब होंगे, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शंस इज 0 एंड ऑल्सो i इज़ नॉट इक्वल टू j। दोनों में ये जो सबस्क्रिप्ट लगे हैं दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इज। सो द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल potential well is given by, in this formula m is the mass of the particle and l is the width of the one dimensional box or one dimensional potential well. So n के साथ अगर वेरिएशन देखें so E n is directly proportional to n square, it means आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डिमेंशनल बॉक्स ऑफ विड्थ l वेरीज एज। सो हमें l के साथ इसकी वेरिएशन देखनी है एनर्जी की, सो E n is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू l स्क्वेयर, सो इट मीन्स आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन वन डिमेंशनल बॉक्स ऑफ विड्थ l। सो l के साथ हमें पता है क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, सो विद इंक्रीज इन l एनर्जी विल डिक्रीज, सो इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन वन डिमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल इज। सो यहाँ पे हमें लीनियर मोमेंटम बताना है। हमें पता है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है ई एन इज इक्वल टू पी एन स्क्वेयर ओवर 2m, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सो हमें यहाँ पे मोमेंटम निकालना है पी एन, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ई एन फ्रॉम दिस इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ पी एन वी गेट इज इक्वल टू n पाई h कट ओवर l। सो इट मीन्स कि जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटम नंबर n। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नोड्स in the ground state wave function of a particle in infinite square well. So we know that in case of a particle in infinite square well, the wave function psi is given by root 2 over L, where L is the width of the well, sine n pi x over L. So here if we plot the wave function for x equal to 0 to x equal to L is the length. So for psi 1, when n is equal to 1, wave function is like this. When n is equal to 2, the wave function psi 2 is like this. So we have to find the number of nodes. So nodes are the points of minimum amplitude or zero amplitude, and in this case, in particle in a box
the number of nodes are equal to n-1 always, and number of antinodes equal to n. So ये आपने हमेशा याद रखना है। कई बार किसी जो बुक्स हैं उनमें n+1 दिया हुआ है बट वो रॉन्ग है, n-1 नोड्स होती हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सर्च किया है। सो n-1 नोड्स होती हैं और n एंटी नोड्स। तो इस केस में अगर हम नंबर ऑफ नोड्स देखेंगे ग्राउंड स्टेट में, तो since n is equal to 1 for ground state, so it means there is no node in case of ground state. At the boundaries जो nodes हैं इनको काउंट नहीं करना। सो नंबर ऑफ नोड्स जो हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। इसमें चारों ऑप्शंस में कोई भी ठीक नहीं है, तो इसका आंसर है जीरो नोड्स। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ एंटी नोड्स इन द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल। इसी केस में अगर ये ग्राउंड स्टेट हम देखें और इसमें एंटी नोड्स देखनी है, तो एंटी नोड्स कितनी होती है, इक्वल टू n। सो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 1 है, इट मीन्स एंटी नोड्स भी 1 होंगी। और यहाँ से क्लियर है ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है सेंटर में सिर्फ, ठीक है। सो नंबर ऑफ एंटी नोड्स आर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ नोड्स इन द फर्स्ट हायर स्टेट, मीन्स जो फर्स्ट एक्साइटर स्टेट वेव फंक्शन है उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। तो ये आपका फर्स्ट एक्साइटर स्टेट है, ये जो साई 2 है, तो इसमें n इज इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो जाएंगी, एक कम हो जाएगी, मींस 1। तो ये सिर्फ जो सेंटर में आ रही है दिस इज द नोड, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर अ पार्टिकल इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल स्टेप एनर्जी E less than the height of the step. So if we have a step potential V and energy of the particle is E and E is less than V, then particle will be reflected back. So it means the reflection coefficient is 1. ठीक है, ये हमारा एक आर्टिकल है क्वांटम मैकेनिक्स में, वहाँ पे ये डिराइव करा गया है कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है R इज इक्वल टू 1 होती है यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस। नेक्स्ट इज the 0 point energy of harmonic oscillator. So energy of harmonic oscillator is given by En is n plus half h nu naught, and for the ground state n is equal to 0 in the harmonic oscillator case. This corresponds to ground state. So energy of the ground state is 1 by 2 h nu naught. Next is the wave function of hydrogen atom depends on wave function of hydrogen atom is product of radial part and the spherical harmonics y. This radial part depends on n and l, where n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number, and y depends on l and ml, where ml is the magnetic quantum number. So it means जो hydrogen atom का wave function है it depends on n, l and ml. Next, the energy of hydrogen atom depends on energy of hydrogen atom we know is equal to minus 13.6 over n square. So it means energy depends on n, means principal quantum number. Option A is correct. Next, the degeneracy for the nth quantum state of hydrogen atom is, so degeneracy क्या होती है, हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन जो है it depends on n, l and ml. So जो आइगन फंक्शंस होंगे, ये पॉसिबिलिटी है कि जो आइगन फंक्शंस होंगे more than 2 आइगन फंक्शंस can have the सेम वैल्यू ऑफ एनर्जी En. सो दैट इज़ कॉल्ड डीजेनरेसी, कि आइगन फंक्शन की एनर्जी सेम हो। या फिर हम दूसरी टर्म्स में बोल सकते हैं कि जो n है इट करस्पॉन्ड्स टू द शेल्स, l करस्पॉन्ड्स टू सब शेल्स एंड ml करस्पॉन्ड्स टू द ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जिसको हम s p d f का नाम देते हैं, सो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n के लिए ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी होगी, दोज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजेनरेट। सो हमें बताना है कि अगर n क्वांटम नंबर है उसके लिए जो डीजेनरेसी है वो क्या होगी। सो अगर हमारा जो n है 1 हो गया इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो इट मीन्स l 0 हो जाएगा, l कैन टेक वैल्यू 0 to n-1, सो इट मीन्स दिस इज द 1s स्टेट। सिमिलरली व्हेन वी टेक n इज इक्वल टू 2, द l वैल्यूज आर 0 एंड 1 एंड करस्पॉन्डिंग m वैल्यूज़ जो हैं ml वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 के लिए 0 हो जाएगी, 1 के लिए +1, 0 एंड -1, मीन्स टोटल 4 वैल्यूज़ हो गई ml की। सो ये 4 जो वैल्यूज़ हैं दे हैव द सेम एनर्जी, मीन्स दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। सो इसलिए यहाँ पे 2 के लिए 4 ऑर्बिटल्स डीजनरेट हो गए। ऐसे ही अगर n 3 ले लें तो उस केस में l की वैल्यूज़ हो जाएंगी 0,
1 एंड 2। इसके लिए ml की एक वैल्यू आएगी, इसके लिए 3 आ जाएंगी और इसके लिए आ जाएंगी 5। मीन्स टोटल 9 जो ऑर्बिटल बनेंगे दे आर डीजनरेट। सो इट मीन्स कि जो ऑर्बिटल्स हैं डीजनरेसी कैसे जा रही है 1 4 9 देन 16 आ जाएगा। सो n ये n की वैल्यू कैसी है 1 है 2 है 3 है 4 के लिए 16 हो जाएगा। इट मीन्स डीजनरेसी कैसे वेरी कर रही है अगर हम n का स्क्वायर कर दें। सो इट मीन्स कि जो डीजनरेसी है दैट इज़ n स्क्वायर फोल्ड। ठीक है, एक तो ये इसको सॉल्व करने का मेथड है। जो दूसरा मेथड है डीजनरेसी को सॉल्व करने का कि जो आपका हमें पता है कि जो l की वैल्यूज़ हैं वेरी फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, और एक पर्टिकुलर l के लिए जो ml वैल्यूज़ होती हैं कितनी होती हैं 2l+1। इतनी ml वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं फॉर अ गिवन l। सो अगर हमें डीजनरेसी निकालनी है सो वी विल टेक समेशन ओवर 2l+1 क्योंकि जितने भी 2l+1 होंगे उनकी सेम एनर्जी होगी। सो समेशन 2l+1 विद l वेरिंग फ्रॉम 0 टू n-1। 0 टू n-1 l की वैल्यू हो सकती है। तो जब हम l 0 से 1 n-1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो टर्म्स बनेगी 1 बनेगी l0 के लिए, देन 3 बनेगी l1 के लिए, देन 5 बनेगी एंड लास्ट इज l इज़ n-1। तो उसके लिए जो लास्ट टर्म बनेगी दैट इज़ 2 इंटू 2n-2+1 दैट इज़ 2n+1। सो एक तरह से ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई AP सीरीज़। और जब इसका समेशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे वी विल गेट दिस इज़ इक्वल टू n² आंसर आ जाएगा समेशन का फॉर्मूला लगा के। सो इट मीन्स कि जो क्वांटम स्टेट है दैट इज़ n² फोल्ड। नेक्स्ट इज द डीजनरेट आइगन फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन n इज इक्वल टू 2। सो n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने ऑलरेडी सॉल्व करा है। हमें पता है कि n² डीजनरेसी होती है। सो इट मीन्स 4 जो स्टेट्स होंगी दे आर डीजनरेट क्योंकि l की वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 एंड 1 एंड ml की वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 और इसके लिए 3 वैल्यूज़ होंगी +1 0 एंड -1। सो दीज 4 स्टेट्स विल बी डीजनरेट। नेक्स्ट द डीजनरेसी ऑफ फर्स्ट एक्साइटर स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटर स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 इज फर्स्ट एक्साइटर स्टेट। तो इसके लिए डीजनरेसी कितनी हो जाएगी 4। नेक्स्ट है द z component ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 and the z component of angular momentum Lz is the z component of angular momentum which is equal to ml h cut and for n is equal to 1 L is 0. If L0 ml is 0 it means the z component of angular momentum is 0 for ground state of hydrogen atom. So answer is A. Next the maximum value allowed to orbital quantum number L corresponding to principal quantum number n. सो n गिवन है, l की कितनी वैल्यूज़ होती हैं हमें पता है। l की वैल्यूज़ हम ले सकते हैं 0 से लेके n-1 तक। सो काउंट करेंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी वैल्यूज़ n। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 1s स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ मैक्सिमम एट। तो 1s स्टेट जो है दैट इज़ स्फेरिकल स्टेट क्योंकि s जो ऑर्बिटल है स्फेरिकल होता है। सो इसकी जो रेडियल प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी एट द फर्स्ट बोहर रेडियस। जब r की वैल्यू इक्वल टू बोहर रेडियस हो जाएगी, इफ ए बी इज़ द बोहर रेडियस, एट दैट पॉइंट द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज़ मैक्सिमम। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो फर्स्ट ऑर्बिटल है दैट इज़ एट ए डिस्टेंस इक्वल टू बोहर रेडियस।